रोल कर रहे हैं। एक मिनट यार। Munchies. इंडिया की स्नैक मार्केट में मसाला ही खत्म हो गया है। Most of the big brands who have the money to experiment and come up with amazing munchies, वो लोग सब profit maximization के लिए safe recipes अपना रहे हैं। Oreo biscuit, Oreo chocolate, Oreo ice cream, Oreo choco pie. बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। But things were different in the 2000s. Snack lovers के लिए 2000s were the best time to be alive. But what happened to all those amazing snacks from our childhood? Here's a recap. Hey guys, welcome back to Desi Recap. Today we're taking a look back on some of the best snacks ever, which made our childhoods awesome and then somehow disappeared. पुलिस चौकी नहीं, कैडबरी चौकी। Anyone will tell you that Nutella tastes best in its original liquid form, straight out of the jar. बचपन में भी कभी हम डेयरी मिल्क पॉकेट में रख के भूल जाते थे, तो बाद में पिघली हुई डेयरी मिल्क को चाट के खा लेते थे। लिक्विड चॉकलेट के साथ हमारे इसी ऑब्सेशन को कैडबरी ने नोटिस कर लिया, and they decided to give us a more user-friendly version of liquid chocolate. Chalky. रॉकी नहीं, चौकी। Chalky was this thin liquid filled straw जिसे खरीदने के लिए सिर्फ 2 रुपए और खाने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगते थे। It also used to come in a variety of flavors like orange, yellow, green. मतलब अलग-अलग कलर्स थे, बट टेस्ट सबका चॉकलेट ही था। But sometime in the mid 2000s, Cadbury decided to discontinue Chalky, and that marked the beginning of a string of bad decisions by Cadbury. सेंटर शॉक इतनी खट्टी होती थी कि उसे बिना शक्ल बनाए खाना क्लासरूम का चैलेंज बन गया था। और सेंटर शॉक का नाम भी एकदम एक्यूरेट था, क्योंकि इसको मुंह में डालते ही ऐसी फीलिंग आती थी कि बैटरी फ्लूइड से भरे हुए गोलगप्पे खा लिए। फिर कुछ टाइम बाद सेंटर शॉक का कंपेटिटर आया, टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब का नाम टाइम बॉम्ब इसलिए था कि पहले उसे मुंह में डालो तो वो मीठा होता था, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसका खट्टा टेस्ट मुंह में टाइम बॉम्ब की तरह फटता था। ये कैंडी थी या बॉम्ब? Time Bomb became popular for a short while, but it was always seen as a competitor to Center Shock. So after a while, it just lost its popularity. But Time Bomb के फटने के साथ साथ Center Shock को भी शॉक लगा, और उसके कुछ टाइम बाद Center Shock के लिए भी बच्चों की टॉलरेंस बढ़ गई, and they just lost interest in it. In 2017, Perfetti Van Mel even relaunched Center Shock for a limited time. 2 of these bad boys in your mouth. But I think it's unlikely that we'll see it again. 2 of these bad boys in your mouth. 2009 में हमारे टीवी स्क्रीन्स पर there came this mysterious shadow of a hippo who was traveling the world, solving problems like war, poverty, hunger, riots, slavery, child labor. भाई ये बच्चों के स्नैक्स का ही ब्रांड है ना? So hippo were these baked atta chips which came in a lot of cool flavors like pizza, Chinese Manchurian, Thai chili. मतलब उस टाइम पे ये फ्लेवर्स तो रेवोल्यूशनरी थे। उनका इनिशियल एड कैंपेन इतना ज्यादा सक्सेसफुल था that Parle was not able to meet the demand for the snack. But unfortunately, Hippo's initial demand started falling. I think it's probably because they had some kind of brand image issues. They were trying to position the brand as something which was a healthier alternative to your fried snacks. But healthy snacks का mascot Hippo था. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Hippo के साथ Parle was also facing some distribution problems. जब भी कहीं स्टॉक खत्म होता, उसे रीस्टॉक करने में उन्हें बहुत टाइम लग रहा था। This made people think कि यार ये स्नैक तो कभी अवेलेबल ही नहीं होता, तो शायद ये बिकता ही नहीं होगा, इसलिए कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। एक दिन कैडबरी और डिज्नी वालों ने सोचा कि भाई हमारे तो लोगों का फॉन्ट भी सेम ही है, तो क्यों ना इस कनेक्शन को कोलैबोरेशन में बदल दिया जाए। And that is how 2 of the most loved things of our childhood came together. कैडबरी की चॉकलेट और डिज्नी के कार्टून्स। कैडबरी वॉवी का कॉन्सेप्ट वैसे तो बहुत सिंपल था। मिल्क चॉकलेट के बैकग्राउंड पे व्हाइट चॉकलेट पीएनजी ऑफ मिकी माउस एंड फ्रेंड्स। Besides being a combination of 2 tasty chocolates, कैडबरी वॉवी खरीदने के टाइम पे ये एक्साइटमेंट भी रहती थी कि भाई इसके अंदर से कैरेक्टर कौन सा निकलेगा। इस चक्कर में बच्चे एक की जगह 2 ले लेते थे कि भाई मिकी माउस नहीं, मुझे तो गूफी चाहिए। Then one day Cadbury dropped this product to focus on 100 different ways to sell Oreos. Okay, Boomer. Boomer needs no introduction. But what I really miss is that watermelon Boomer jelly. वो इकलौती ऐसी टॉफी थी जो 1 रुपए में 2 लोग शेयर कर सकते थे, और हर फ्रेंड सर्कल में 2 बंदे ऐसे होते ही थे जिसमें से एक को जेली पसंद नहीं थी और दूसरे को च्युइंगम पसंद नहीं थी, तो परफेक्ट स्प्लिट था। Pepsi Blue was a rage at class parties and picnics. It was originally launched in response to vanilla Coke in the international markets.
बट पेप्सी ने इसको इंडिया में 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइम पे लॉन्च किया एज अ पेट्रियोटिक ड्रिंक फॉर द मेन इन ब्लू। बचपन में आई यूज्ड टू थिंक कि ये पेप्सी ब्लू का ब्लू कलर आता कहां से। तो आइए करते हैं सनसनीखेज खुलासा। पेप्सी ब्लू का ब्लू कलर आता है ब्लू वन कलरिंग एजेंट से, जो कि दुनिया के कई देशों में बैन है। एक्स पेप्सी एम्प्लॉयज का कहना है कि पेप्सी को तो इस ड्रिंक के टेस्ट की परवाह ही नहीं थी, उन्होंने सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए इसको लॉन्च कर दिया। बट देखो भाई, हम बच्चों को तो पेप्सी ब्लू का टेस्ट, कलर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, पर अफसोस ब्लू पेप्सी के लिए हमारा ये प्यार उसे बचाने के लिए काफी नहीं था। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक पिए जो दिखने में केरोसिन लगती है। उसके ऊपर से जिस वर्ल्ड कप पे कैपिटलाइज करने के लिए ब्लू पेप्सी को लॉन्च किया था, वो वर्ल्ड कप इंडिया हार गई। और उसके बाद एज यूजुअल हमारे देश के पैशनेट क्रिकेट लवर्स ने क्रिकेटर्स के पुतले जलाने शुरू कर दिए और उनसे रिलेटेड कोई भी चीज को कंडेम कर दिया गया। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फेवरेट ऑफ द किड्स, ब्लू पेप्सी अपने लॉन्च के 1-1.5 साल में ही डिसकंटिन्यू हो गई। बट यू कैन स्टिल गेट इट इन फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। हाँ ब्रो निखिल, भाई इंडोनेशिया की 2 टिकट्स बुक कर अभी के अभी। हाँ, एक्स्ट्रा बैगेज के साथ। अभी वहां से ब्लू पेप्सी भर के लाएंगे ना भाई बैग में। We are infinite. हाँ, पर्क अभी भी मिलती है। But this glucose perk doesn't even come close to the original perk. The original perk was this super creamy chocolate with crunchy wafer, not like this silly हुई फीकी glucose chocolate. देखो, ग्लूकोज के लिए हमारे पास ग्लूकॉन डी है, ये चॉकलेट में ग्लूकोज घुसाने का क्या लॉजिक है? एनर्जी से भरे बच्चे मारे 6, धूप की हो जाए टाई फिस। पर्क was widely popular during its time. फिर कैडबरी वालों ने सोचा कि भाई ये पर्क की पॉपुलैरिटी पे हम डबल पैसे कैसे कमा सकते हैं। Then they got this idea. पहली बार चोको क्रीम अंदर वेफर बाहर बॉस। उल्टा पर्क was exactly what the name said. पर्क, but चॉकलेट अंदर और वेफर बाहर। तो इस इनोवेशन के लिए मैं पर्क को 100 मार्क्स देना चाहूंगा, बट इस इनोवेशन फॉर द सेक ऑफ इनोवेशन के लिए 0 मार्क्स। Because while some people did enjoy Ulta Perk, the truth is they were all psychopaths. But Ulta Perk might have been the inspiration for Cadbury's most iconic snack ever, which I'll come to in a bit. Everyone remembers the original gateway to smoking, sugar addiction और क्लास में चौक खाना, Phantom cigarettes. Groovy. ये वो शुगर स्टिक्स थी जिन्हें बचपन में हम मुंह में डाल के स्मोकिंग की एक्टिंग करते थे। While Phantom cigarettes are difficult to find in metros, they are still available in a lot of small towns. And you can also get them on Amazon from the link below. Did you call moi a dipshit? Before Nutella dip and biscuits, we had the original dip tricks. With a friendly rabbit mascot, multiple flavors of dips, and a cheap price point, these were an ideal evening snack while they were in circulation. Church Street. Before settling for their current RGB range, Lay's actually used to experiment a lot with their flavors. The Lay's World Cup Series collection is still one of my most memorable collection of snacks. But early 2000s में जब Lay's और सैफ की पार्टनरशिप अपने पीक पे थी, तब Lay's ने इंडियन स्ट्रीट फूड जैसे पानीपुरी, भेलपुरी, इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट किया, and they came out with the Chart Street collection. Chart Street was around for quite a while and it was quite popular. But I guess Lay's को इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा पोटेंशियल नहीं दिखा, वो सिर्फ बिंगो को दिखा। Pim Pam was another simple but classic idea. Lollipop के बीच में bubble gum. They basically gave us the best of both worlds. People used to love the cola and strawberry flavors, but अगर तुम शॉप पे टाइम से नहीं पहुंचे तो तुम्हें सिर्फ ऑरेंज ही मिलता था। ये क्या बेहुदा हरकत है? I don't see Pim Pam returning as a market leader because आजकल Jolly Rancher ने लॉलीपॉप की मार्केट में मोनोपोली बना ली है। But the good news is you can still get Pim Pam on Amazon. अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। Cadbury Bites was the ब्रह्मास्त्र of snacks. Bites के बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसका नाम सुनते ही दिमाग में वो क्रंची वेफर, इसको मुंह में रखो तो वो क्रीमी चॉकलेट में घुल जाता था, उसकी याद आ जाती है। Bites was the most unique snack. It used to come in chocolate, strawberry and coffee flavor, और ये तीनों फ्लेवर्स माइंड ब्लोइंग थे। Bites हर जगह खाने के लिए परफेक्ट था, स्कूल में, घर में, सिनेमा हॉल में, क्लास पिकनिक पे, क्लास पार्टी पे, हर जगह। प्लस ये सिर्फ 5 रुपए का था। Guys, it was too good to be true. अगर आज भी Bites होता तो it would have made the best munchies ever. And can you believe that this product was custom made for India? और ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता था। But then 2010 में Kraft Foods took over Cadbury and they started pushing internationally successful products like Oreo and Tang. और इसके लिए उन्होंने Bites की बलि चढ़ा दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहले एक आध स्टोर में कुछ बचा कुछ स्टॉक मिल भी जाता था, but now it's nowhere to be found. 90s और 2000s के बच्चे आज भी change.org पे Bites को वापस लाने की पिटीशन डाल रहे हैं। प्यार समझ रहे हो?
अभी ट्विटर पे कुछ दिन पहले किसी ने डाला कि पार्ले प्लीज ब्रिंग बैक रोला कोला, तो पार्ले ने 10,000 रीट्वीट्स के बदले रोला कोला वापस लॉन्च कर दिया। नाउ यू नो व्हाट टू डू। ट्विटर पे जाओ और कैडबरी बाइट्स ने ट्वीट करो राइट आओ अभी इसी वक्त। इन कंक्लूजन, कैडबरी हाउ डिड यू फक दिस अप? थैंक यू फॉर वॉचिंग देसी रिकैप गाइस। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करना तो मत करो, बट प्लीज किसी तरह कैडबरी बाइट्स वापस लेके आओ यार। प्लीज ट्वीट दिस वीडियो टू कैडबरी एंड आस्क देम टू गेट बाइट्स बैक। 2009